ओके, इसे कहना ही नहीं है। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा? वी टॉक अबाउट Power BI services, workspace access, right? Then how to create a Power BI app, how we can provide uh, access to different set of users or different report set, because workspace contain multiple reports. If you give any person access to your workspace, it means you give access for all the contents which is in that particular workspace. So to overcome these limitations, when you wanted to share a particular report to particular user, you create a Power BI app, and in the Power BI app, in the audience sections, you create a user group or user, or add user in the audience sections and give the access. That's what we do in Power BI services for the Power BI app creations and the workspace level access. So that is clear to you all, right? Now let's move to the next topic. So next topic is row level security. What is the row level security? Row level security is nothing but you restrict a data to the user as per the filtrations criteria you apply on the data set. What it means, let's say, जैसे for example, whatever the reports I created, मैंने जो Power BI reports बनाया है उसमें मल्टीपल कंट्रीज का डेटा है. ऑब्वियसली मेरे पास कंट्री का एक डायमेंशन टेबल है and वो मेरे फैक्ट टेबल्स को फिल्टर आउट करता है, राइट? कि कंट्री वाइज अगर मुझे सेल देखना है या कंट्री वाइज कॉस्ट देखनी है, वट जो डेटा सेट में मैं रिपोर्ट्स में विजुअलाइजेशंस क्रिएट करता हूँ बेस अपॉन माय मॉडल, तो हम जो रिलेशनशिप बैकएंड में बनी हुई है, जो हमारा कंट्री का टेबल है, वो फिल्टर करता है मेरे ट्रांजैक्शन टेबल को. सो इन शॉर्ट, लेट्स से मेरे पास एक फैक्ट टेबल है जिसमें 100 रोज है, एंड अब मेरे पास एक डायमेंशन टेबल है जिसमें कंट्रीज के नाम है. तो कंट्री का जो डायमेंशन टेबल है, इट कनेक्ट विथ दैट ट्रांजैक्शन टेबल विथ द की. अगर मैंने यहाँ पे कनाडा नाम से सर्च किया या कनाडा का फिल्टर अप्लाई किया, तो ट्रांजैक्शन टेबल में क्या होगा, कनाडा के लिए फिल्ट्रेशन होगा एंड इट गिव मी आउटपुट फॉर द कनाडा. So same logic is apply for the row level security. Over here, you can create a roles based upon your filtrations criteria. Let's say over here in that case मेरे पास country का filtration है. I wanted to apply a row level security on a country level. तो country level पे apply करने के लिए I can do, मैं roles create करूँगा कुछ, right? And उन roles को उन user को assign करूँगा. जैसे ही वो particular user login करेगा Power BI services पे, based upon your role, that filtrations, that particular users can able to see only particular data, right? So when we talk about row level security, there are two types of row level security. First is the static row level security, and the second one is the dynamic row level security. So let's understand what is the static row level security. Let me open my Power BI desktop. When you wanted to apply a row level security, you need to apply it on a first your report basis in Power BI desktop. Then you need to publish this report again into the workspace, and then addition of a users are there. So let me show you how you can do this. So firstly, you need to open your report. Open my
Let me open the report. Give me a minute. Basically, what is happening? Let's say this is your data set. Huh? Let's say मेरा Power BI report. This is my data set, and I am creating a role. Let's say role for Canada. This is we talk about static row level security. ठीक है, ये मेरा एक रोल मैंने क्रिएट किया. ठीक है, दिस रोल आई कैन क्रिएट इन दिस रिपोर्ट पावर बाय डेस्कटॉप. सो ये रोल मैं इसको क्रिएट करूंगा यहाँ पे पावर बाय डेस्कटॉप के अंदर, एंड देन पावर BI डेस्कटॉप विल बी showcasing me when I publish this report. Just पावर BI रिपोर्ट्स को रोल क्रिएट करूंगा पावर BI रिपोर्ट्स के अंदर, एंड देन आई विल पब्लिश दिस टू द पावर BI सर्विस. Okay, this reports I publish in Power BI service, and when a user logins with a email address, say user 1, ये user 1 है. जब ये user 1 जिसको मैंने इस रोल पे एक्सेस दिया हुआ है, एक्सेस कहाँ पे दूंगा मैं? पावर BI सर्विसेज पे दूंगा. इस रोल को कैसे दूंगा वो मैं दिखाता हूँ आपको. आई गिव दिस यूजर एक्सेस इन पावर BI सर्विस फॉर द रोल आई क्रिएटेड. When this users open the Power BI services and open that report, user can able to see only the report for the Power Canada data. So when I open Power BI desktop, I'll go to the modeling sections, and over here we called something in the security sections. We have this manage roles and view as, right? So this is used for the row level security applications. So first create one role. Let's say manage roles. I'll go to the manage roles, and over here मुझे एक विंडो आएगा फॉर द रोल्स क्रिएशन. आई क्लिक ऑन द न्यू, और इन टाइटल को अनटाइटल को मैं नाम दूंगा लेट्स से कनाडा. ठीक है, मैंने कनाडा का एक रोल बनाया. जस्ट मैंने एक रोल बनाया जिसको कनाडा नाम दिया. आई डिडंट असाइन एनी काइंड ऑफ अ filtrations yet on this. So
व्हेन वी टॉक अबाउट कनाडा, हमें ये पता होना चाहिए कि कनाडा क्या है, एक कंट्री है, एंड हमारे पास कंट्री का एक डायमेंशन टेबल है, टेरिटरी टेबल, जिसमें कंट्री का कॉलम है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रो लेवल सिक्योरिटी यू रिक्वायर्ड अ कॉलम। जिस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आपको रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, दैट कॉलम्स इज टू बी प्रेजेंट इन योर ट्रांजैक्शन टेबल आल्सो। जैसे हमारे पास जो हमारा ट्रांजैक्शन टेबल है सेल्स फैक्ट का, उसमें टेरिटरी की अवेलेबल है, राइट? सो बेस्ड अपॉन द टेरिटरी वी कैन फिल्टर द डेटा. So we go to this territory dim. I select this territory dim, and over here in the new sections I'll say new. This is kind of a UI for the putting the values. Let's say when you click on this territory dim, यहाँ पे आपको टेरिटरी डिम के अंदर के कॉलम्स दिखेंगे, उस टेबल के अंदर के. आई वॉन्ट टू अप्लाई for the country, so I'll say country equals. You can apply any operator over here, so I'll say country equal to, I'm putting over here Canada. Make sure this value needs to be exact value which you use in the table. टेबल में जैसे वैल्यू है वैसे ही वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी. I'm putting over here Canada. यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, switch to DAX editor. So if I switch to DAX editor, you see this things goes to the like a DAX. You can write a DAX also here. Switch to default editor, it will be showing you. So basically default editor जो है, when you apply filtrations based upon some values, जैसे हम यहाँ पे कनाडा के बेसिस पे फिल्ट्रेशंस कर रहे हैं, या कोई और एक रोल बनाऊंगा मैं जिसमें लेट्स से आई पुट यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे मल्टीपल रोल बना सकता हूँ मैं फॉर ईच रोल फॉर ईच यूज़र ग्रुप के लिए. तो आप डिफ़ॉल्ट जो व्यू है यहाँ का वो वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. एडिटर आप मोस्टली use for the dynamic row level security. When you apply some filtrations, multiple columns, put some conditions, all that purpose you use a DAX editor. But normal case mein, when you apply on a only single value filtrations, then you go for these rules, whatever the default view is. Currently I'm in a static row level security, so this is enough for me because I'll simply wanted to apply a one value filtrations on a particular column. So I'm using this default view. So in the Canada role, I use this territory dim dimension table. In that dimension tables, I am putting one rule that country equals to Canada. Okay, I'll select this. I'll say save. Okay, now successful applied role changes. I'll say close. Now let's say when I wanted to test my this role, I'll go to the view as. When I click on the view as, it showing me whatever the roles I created. I'll say Canada and say OK. So now you see when you apply the filtrations or you test this role, Canada role, it your reports filters accordingly, right? You see this data is changed, and this data is now when a user log in the Power BI services and see your report, whoever users you put in the Canada role sections, उनको ऐसा रिपोर्ट दिखेगा with Canada filtrations, not all country filtrations. Okay, so when I set country, you see in this sections I'm having a country filtrations. So इसके अंदर मुझे सिर्फ कनाडा का ही दिख रहा है ऑप्शन, बाकी की जो कंट्रीज है यहाँ पे नहीं दिख रही. दिस व्यू एज फॉर टेस्टिंग पर्पज. आपको यहाँ पे टेस्ट करना है पहले जब आप रोल क्रिएट करते हो कि दिस रोल इज वर्किंग फाइन और नॉट. सो आई विल से स्टॉप व्यूइंग. अगेन द फिल्ट्रेशंस विल बी रिमूव, एंड इफ आई एक्सपांड दिस कंट्री अगेन आई एम सीइंग ऑल द कंट्रीज. सो हमारा जो रोल है कनाडा का वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली. नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हेन यू क्रिएट द रोल, टेस्ट इट, then next step is you want to publish this role. So publish means I'll go to the home, I'll save this informations in my report, and I publish this report again in my workspace wherever I wanted to put this report. So in our case Rahul test is our workspace. I'll say select, but in the Rahul test workspace there is a already report presented with the name. इस नेम से ऑलरेडी एक रिपोर्ट प्रेजेंट है. सो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको ये रिप्लेस करना है क्या डेटा सेट.
सो आई सिंपली से रिप्लेस ओल्ड वन विद दिस न्यू वन. अगर आपको दोनों रखने हैं तो यू कैन चेंज दिस नेम टू समथिंग एल्स, तो आप दोनों रख सकते हो, बट instead of keeping two, keep it one as simple. So I'll say replace this. Success, got it. Now your work finish with this. Now let's understand in Power BI services. I'll go to the Power BI services. I'll go to the workspace. This is my workspace. Okay. So this is the current data set that I publish, and this is the report. Now in the dataset sections, I'll go to the three dots, ellipses, go to the security section. When I go to the security sections, you see this Canada role is over here that I created, right? In Power BI Desktop, we create this Canada role, publish this report into the workspace. When we open the data set for that particular reports, we can see the role that we created. Currently, it is showing Canada 0. That means no any user is assigned to this particular role. I can simply add a user over here. Let's say मेरा ही ईमेल एड्रेस ऐड करके चेक करता हूँ मैं. It's not working because I am the admin. Don't have email address right now. So you can put the email address over here like this. When you put in the email address, ultimately it searching for that particular name in your domain and give you like this. So this is the persons who hold this email address. You can put group also. So clearly mention over here peoples or groups, right? So groups मतलब ईमेल एड्रेस के जो ग्रुप्स बने होते हैं वो ग्रुप्स भी आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ एडिंग वन ईमेल एड्रेस यू कैन ऐड अ ग्रुप डायरेक्टली. ठीक है. सो आप इस तरह से ऐड करोगे यहाँ पे. एल से ऐड. जब यूजर यहाँ पे ऐड होगा आपको क्लिक करना पड़ेगा सेव पे. दिस इज द सेकेंड स्टेप. जब आपको किसी यूजर को पर्टिकुलर कंट्रीज का ही या पर्टिकुलर लोकेशन का एक्सेस देना है. फर्स्टली आपने क्या किया. फर्स्टली यू क्रिएट अ रोल in Power BI desktop. You test this role, then you publish this Power BI text Power BI report to the Power BI services. Then you go into the Power BI services in that particular workspace, open the dataset, go to the security level, security options, and you see the roles that you created. You need to assign, add that particular email address in that sections and say save. Now you can see Canada in bracket 1. So that means Canada role के लिए एक यूजर को ऐड किया गया. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे एक 3 ellipses पे अगेन इट हैविंग ऑप्शन टेस्ट एज अ रोल. सो बिफोर दैट पर्टिकुलर यूजर चेक करने से पहले आप चेक कर सकते हो कि कनाडा का जो रोल है सो इसे टेस्ट एज अ रोल. Now you can see when that particular user open this, it can be able to see only for the Canada. Understood? You see the over here now viewing as a Canada row. Understood? समझ में आ रहा है ये? I'll say back. मैंने रोल टेस्ट कर लिया. That is enough. So this is how this static row level security is working. आप सिंपली क्या करते हो. बेस्ड अपॉन योर क्राइटेरिया रोल्स क्रिएट करते हो एंड अप्लाई और ऐड यूजर्स इनटू स्पेसिफिक रोल्स. समझ में आ रहा है. ये जब आप RLS अप्लाई करते हो एंड यू क्रिएट ऐप फॉर दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, सो RLS विल बी डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द ऐप आल्सो, क्योंकि आप डेटा सेट लेवल पे ये क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो. सो जब आप रिपोर्ट्स ऐप के थ्रू यूजर्स को दिखाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर. जब लेट्स से अभी यहाँ पे वर्क स्पेस में ये जो क्रिएट ऐप है अभी हमारे पास ऐप नहीं, व्हेन आई से क्रिएट ऐप, तो मुझे ऐप के अंदर भी
उस यूज़र को ऐड करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल वे में हमने ऐप क्रिएट किया है, यूज़र को वहाँ पे भी एक्सेस दिया था। तो रो लेवल सिक्योरिटी पे आपने ठीक है यूज़र को एक्सेस दिया है, बट व्हेन यू क्रिएट द ऐप आपको अगेन उस यूज़र का ईमेल एड्रेस पर्टिकुलर सेक्शन में भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द फ्लो, दिस इज हाउ इट वर्क्स। स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी समझ में आ रहा है? ओके, इट इज सिंपल वन। आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है, देन यू क्रिएट अ रोल फॉर दैट पर्टिकुलर फिल्ट्रेशंस। जैसे मैंने कनाडा के लिए फिल्ट्रेशन अप्लाई किया, लेट्स से मुझे किसी यूज़र को यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सेस देना है, सो आई अगेन गो टू द पावर बाई डेस्कटॉप, क्रिएट अ रोल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। लेट्स से किसी यूज़र को मुझे कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट दोनों का एक्सेस देना है, right? So either I can add that particular user in both the roles or I can create a new role, right? So यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल सिनारियो हो जाता है कि इफ़ यू हैव, लेट्स से मेरे पास अभी फॉर एग्जांपल 5 कंट्रीज है, सो इट इज़ इजी फॉर मी टू क्रिएट अ स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी। लेट्स से कोई फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया ऐसा है जिस पे मुझे लेट्स से उसमें जो कैटेगरीज है या वैल्यूज है वो हंड्रेड्स है, 200s है। For example, let's say I wanted to apply the row level security on product name, for example, right? तो प्रोडक्ट नेम हमारे पास कितने हैं? लेट्स से वी हैव समथिंग 500-700 प्रोडक्ट्स। तो उतनी रो लेवल सिक्योरिटी तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? उतनी स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज हर एक रोल के लिए मुझे हर एक प्रोडक्ट के लिए मुझे एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा। सो when your filtrations criteria are too large, then in that case you don't use static row level security. So basically, static row level security is for what? Where your filtration are quite lower, yeah, quite lower values, that particular columns. आपके filtrations criteria कम है, जैसे हमारे केस में हमारे पास 4 या 5 ही कंट्रीज है एंड वी वांटेड टू अप्लाई सम रो लेवल सिक्योरिटी ऑन दैट, कि पर्टिकुलर लोकेशन का यूज़र उसी कंट्री का डेटा देख सके। सो उस केस में आप स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हो। बट स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी का ड्रॉबैक क्या है? उसको उसको मेंटेन करना मुश्किल है। आपको अलग से उसका एक शीट बना के रखना पड़ेगा दैट दिस पर्टिकुलर रोल्स हैविंग दिस मच ऑफ यूजर ग्रुप। अगेन लेट्स से मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर को ऐड करना है किसी सेक्शन के अंदर, अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को ऐड करना है किसी सेक्शन के अंदर, देन अगेन आई नीड टू गो टू द पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विसेज, उस यूजर को ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे। सो देयर इज अ लेंदी प्रोसेस हो गया। सो स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी में filtrations criteria अगर लेस है, लेस नंबर ऑफ filtrations you have, then you go for the static level security, but उसको मेंटेन करना मुश्किल है। सो इन रियल प्रैक्टिस वी ऑलवेज यूज डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी, राइट? इन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी यूज होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी क्या है। सो इन डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी यू क्रिएट अ रोल, बट यू डोंट क्रिएट एनी स्पेसिफिक रोल टू द लोकेशन। जैसे हमने हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप में यहाँ पे जो रोल क्रिएट किया था, गो टू द मॉडलिंग सेक्शंस एंड अगेन मैनेज रोल, तो ये जो कनाडा का रोल क्रिएट किया था, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल रोल्स फॉर द मल्टीपल कंट्रीज, मैं एक ही रोल क्रिएट करूंगा एंड आई क्रिएट अ सेपरेट टेबल फॉर द मैपिंग। जैसे एक मैपिंग टेबल क्रिएट करूंगा जिसमें मैं मेंशन करूंगा कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है यूज़र का, और उसको मुझे कौन से लोकेशन का एक्सेस देना है, राइट? सो लेट्स से एग्जांपल, I'll go to my Excel and over here I'm creating one sheet. Let's say serial number, email address, and let's say location. So simply I can say serial number 1. Let's say my email address will be this and location will be, let's say, Canada. ठीक है, ऐसे में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल ईमेल एड्रेस ऐड कर सकता हूँ एंड मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकता हूँ। अभी इस केस में लेट्स से दिस पर्टिकुलर यूजर को मुझे कनाडा का भी एक्सेस देना है एंड किसी और कंट्री का भी एक्सेस देना है। सो इट सिंपली रिपीट द रो, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 2 डालूंगा, लेट्स से अगेन दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, इसको लेट्स से मुझे रोल देना है यूनाइटेड स्टेट्स।
ठीक है। सो मैं ऐसा एक टेबल मेंटेन करूंगा। ये टेबल मैं कहाँ पे भी रख सकता हूँ, मेरे शेयर पॉइंट पे, वन ड्राइव पे, या मेरे डेटाबेस के अंदर ऐसा टेबल रख सकता हूँ। इन केस अगर फ्यूचर में यूज़र्स को या क्लाइंट को नए यूज़र्स को ऐड करना है यहाँ पे, तो वो अपने हिसाब से बस ईमेल एड्रेस ऐड करे, कौन सी लोकेशन का एक्सेस उसको देना है वो ऐड करे, एंड रिपोर्ट को रिफ्रेश करे। सो वंस आई क्रिएट दिस शीट, आई जस्ट रीनेम दिस एज अ say control s and option was okay, let's say option। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ मैं RLS। ठीक है, ये फाइल मैंने सेव कर लिया RLS। नाउ आई विल गो टू द पावर BI डेस्कटॉप, आई रिमूव दिस रोल, मैं इस रोल को डिलीट कर रहा हूँ, से डिलीट दिस, सेव, क्लोज इट। मेरे पास अभी कोई रोल नहीं है, राइट। नाउ हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स ली फर्स्ट ग्रैब दिस टेबल, जो टेबल मैंने बनाया। आई विल गो टू द होम, से एक्सेल वर्कबुक, RLS table, open it। This sheet once I wanted, and say load। Two rows, when we see our table, this is sheet 1, which is our RLS table। I'll just rename this as a RLS। ठीक है, मेरे पास यूज़र की लिस्ट है, यूज़र का ईमेल एड्रेस है, एंड उस यूज़र को कौन सी लोकेशन का एक्सेस देना है उसका नाम है यहाँ पे। अभी इस लोकेशन को आप लोकेशन की भी बोल सकते हो। लेट्स से आपके डायमेंशन टेबल में लोकेशन की के बेसिस पे फिल्ट्रेशंस करना है आपको, तो यू कैन पुट दिस, क्योंकि ये जो कॉलम है, ये कॉलम नीड्स टू बी प्रेजेंट इन योर डायमेंशन टेबल, राइट। ये कॉलम प्रेजेंट होना ज़रूरी है, या जिस पर्टिकुलर टेबल को आपको फिल्टर करना है उसमें ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर उस टेबल में लेट्स से हमारे पास जो डायमेंशन टेबल में उसमें वैल्यूज़ ऐसी नहीं है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें 1 2 3 के फॉर्मेट में है वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यूज यूज़ करूँगा। लेट्स से मैं इसको नाम दूंगा लोकेशन की, एंड आई पुट दोज वैल्यू कि कनाडा मतलब 1 है, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब 2 है। सो काइंड ऑफ मैं वैल्यूज को पुट करूँगा यहाँ पे। सो दिस कॉलम इज टू बी प्रेजेंट इन यूर डायमेंशन टेबल्स और द टेबल्स विच यू वांटेड टू फिल्टर। ठीक है, तो ये टेबल मैंने यहाँ पे लोड कर लिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस फंक्शन ऑल्सो। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है फॉर द डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी यूज पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक डैक्स यूज़ करते हैं। कौन सा डैक्स यूज़ करते हैं? लेट्स से मैं यहाँ पे एक न्यू मेजर क्रिएट कर रहा हूँ। हम डैक्स यूज़ करते हैं यूज़र प्रिंसिपल नेम। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ यूज़र इज इक्वल टू यूज़र प्रिंसिपल नेम। यू सी दिस फंक्शन यूज़र प्रिंसिपल नेम। आई डोंट पुट एनीथिंग इनसाइड इट, हम पुट नहीं करते, आई सिंपली इंटर। इस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज केस बता रहा हूँ मैं कि व्हाट इज दिस एक्चुअली। मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर gives me a some value। ये क्या है? डेस्कटॉप KMPH7AI EBC। बेसिकली दिस इज माय सिस्टम नेम। मेरी जो सिस्टम है जहाँ पे ये पावर BI डेस्कटॉप अभी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, उस सिस्टम का नाम है ये। जब मैं इस पर्टिकुलर यूज़र को या इस पर्टिकुलर मेजर को पावर BI डेस्कटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये पर्टिकुलर फंक्शन गिव्स मी दिस वैल्यू। But when I publish this report in Power BI services, you observe this particular value changes to email address, this one। So Power BI services पे वो आपके मशीन के नाम से आइडेंटिफाई नहीं करता, वो आइडेंटिफाई करता है किस यूज़र ने वो रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है, या कौन सा यूज़र ने पावर BI सर्विसेज को लॉग इन किया हुआ है।
उस पर्टिकुलर यूजर का ईमेल एड्रेस वो क्या करता है, यहाँ पे रिटर्न करता है। सो पावर बीआई डेस्कटॉप पे आपको ये वैल्यू मिल रही है। आप जब ट्राई करोगे तो आपको आपके सिस्टम का नाम मिलेगा। मैं इसको नाम दे रहा हूँ लेट्स से यूजर, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। नाउ let's quickly publish this and we see what is happening when we see this in Power BI services. I'll say simply replace this. Put it. Go to the my services. Refresh this page. Okay, so I'll open the report. You see this user now. When we see this informations in Power BI desktop, it gives you this value. But same reports when we open in Power BI services, it gives me an email address. Understood? ये समझ में आ रहा है? So basically what it capturing, user principal name is what is capturing, it capturing which user is logged into the Power BI services. So मैं ये रिपोर्ट ओपन कर रहा हूँ and this is my email address. So हम इस email address को यूज करेंगे for the filtrations purpose. So हम इसीलिए हमने यहाँ पे ये टेबल बनाया है जिसपे हमने मेंशन किया है कि if user log in with this email address then showcase or apply this filtrations. If user log in with a different email address, let's say मेरे पास यहाँ पे list email address की, if email address log in with another email address, whatever filtrations criteria you specify in this location column, apply filtration for that. So this is the logic for the user principal name. That's why we using user principal name function. अभी clear है, समझ में आ रहा है? So that's why we create this table, mapping table. We load this mapping table in our model RLS. वो टेबल हमने यहाँ पे लोड किया है. Now let's connect this RLS table to the required table, right? So I'll just move this table, or otherwise I can go to the layout one. I needed this RLS table, where it is. I wanted this RLS table. ओके आप ऐसे मल्टीपल लेआउट बना सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट फाइनली वो अल्टीमेटली वो यहाँ पे ही होता है ऑल टेबल्स के इसमें. ये लेआउट बस किस लिए होते हैं, आपको पार्ट्स में अगर देखना है पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स किसी टेबल्स के साथ तो आप ट्रैक करके यहाँ पे लेके आ सकते हो. सो मुझे RLS का टेबल्स एंड मेरा जो डायमेंशन टेबल है टेरिटरी, उन दो टेबल्स को मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ. करंटली दो डोंट हैव एनी रिलेशनशिप्स, राइट? सो वी हैव दिस लोकेशन ओवर हियर and we have a country over here, right? Both columns contain same value. Columns के नाम अलग अलग हो लेकिन उसके अंदर की values same. So I can create a relationship between these two. So why we creating these relationships? Because our RLS tables contain username or user का email address and which filtrations that users require. वो informations हमारे RLS table में. Simply we connecting this RLS table to our dimension table. So we are saying when particular email address is login, filter for the Canada, filter for the United States. So that's why we create those relationships. When you applying a dynamic row level security, you need to create these tables and create a relationships. Understood? So I'm creating the relationship between my locations and country columns. This cardinality seems to be one to many, but there is not a case because in RLS table, this RLS table, अभी location की जो field है वहाँ पे मैंने let's say unique value डाली हुई है. Let's say there is a third user, उसको भी कनाडा का एक्सेस चाहिए, फोर्थ यूजर उसको यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सेस, मतलब लोकेशन का जो कॉलम है आपका उसमें डुप्लीकेशंस होगा, वहाँ पे यूनिकनेस नहीं रहेगा हमेशा. अभी फिलहाल के लिए जब मैंने टेबल लोड किया तब उसमें यूनिकनेस था, बट वो यूनिकनेस रहने वाला नहीं है बिकॉज मल्टीपल यूजर्स में हैव अ सेम लोकेशन एक्सेस, राइट? अंडरस्टूड हो रहा है? दैट्स वाई ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे आप जो क्रिएट कर रहे हो, ये कार्डिनलिटी इसने कौन सी बेसिस पे दिया है? करंट वैल्यू की बेसिस पे दिया है. सो यू नीड टू चेंज दिस कार्डिनलिटी. आइदर यू कैन पुट दिस एज अ मेनी टू मेनी, या this RLS table always have a many. So I'll change this
let's say I wanted this many and this many, so I'll put many to many. And directions I wanted from RLS to, yeah, you can keep both also. I'll say simply both, and I'll check this, make this relationship active, and apply security filter in both directions. I'll make sure I'll mark those two, check. I'll say save. Now you can see you created relationships, it having both directions. Now your part is over. Let's move forward. Next part is go to the manage role and create your role now. मैं again go to the manage roles. Now यहाँ पे मुझे एक role create करना पड़ेगा. I'll say new role. This time, hello, hello, हाँ बोला. जरा बाहेर होतो का? हाँ. हा घरी येतो. हा बाहेर आला. मी एक अर्धा पाऊण तासात करतो परत. मी परत फोन करतो अर्धा पाऊण तासात. ठीक है. So we create a role. So I'll just rename this role as a dynamic RLS. मैं इसको ऐसे नाम दे रहा हूँ dynamic RLS. Okay, fine. So dynamic RLS, in what tables we need to apply? We added this RLS table for that purpose only. So I'll select this RLS purpose, and over here I'll say new. मेरे पास email address का column है. So I'm saying over here कि when RLS table का email address equal to whoever user log into the Power BI services, वो अगर same रहेंगे, then apply for the filtrations. So I'll go to the switch tags editor, and over here I'm simply saying email address equals to user. We created this measure, right? So what it means, email address जो user login करेगा उसका email address जब RLS के टेबल की email address के साथ मैच होगा, उस टाइम पे जो मैंने फिल्ट्रेशन स्पेसिफाई किया है वो फिल्ट्रेशंस अप्लाई करो. व्हाट एट इसका मीनिंग वो है. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? सिंपली आई गो टू दिस. ठीक है. email address equal to user. I'll say save. This check mark is for testing your DAX. अगर DAX में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एरर देगा. I'll say save. मैंने एक ही रोल क्रिएट किया है यहाँ पे, मैं नॉट मल्टीपल बोला. एक ही रोल क्रिएट किया. आई क्लोज दिस, and now I'll go to the home sections. I save this, and now I publish this. Go to the executive summary page, and I'll publish this report, the Rahul test. Now rest of the things जो हमने देखी थी कि when we learn about static row level security, जब ये रिपोर्ट वहां पे ओपन करेंगे हम, आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? देन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स की डेटा सेट सेटिंग पर. क्लोज दिस, रिफ्रेश दिस पेज वंस अगेन. Okay, I'll go to this dataset security part. This is my security. You see this, your role, dynamic role levels role is here. I'll add an email address. This is my email address. I'll say add and say save. Now हमने यहाँ पे उस particular user को कितने access दिए हैं? 2 location के access दिए. So when that particular user logins, I'll say test as a role. Go to the executive summary. This is the user. When we drop down this, you see this Canada and United States are there. Understood? समझ में आ रहा है? So in future, now what is the benefit for this United States? Let's say मैं यहाँ पे मैंने एक और user ऐड कर दिया, example third.
and I'll say this users I wanted a access for, let's say, which country we have in France. France is we have France. I think we have. Now I added this in my Excel. I'll go to the my report in Power BI desktop, refresh this report. We are doing this manually. Yeah? We are also going to see how we can refresh this automatically in a couple of minutes. Once we finish with this, we will start with this data gateways part. Okay, मेरा report refresh हुआ. When I check with my data in the RLS table, save this, refresh it. Now your third row is added. I'll again go to the report view and publish this. Save. Test, select, replace. You're just replacing the data set. So the role is same over again and again. So you did not need to add in Power BI services that particular email address again. Say back. So it is already added. Go to the workspace again. And this time again, I go to the security part again. And I'll say this particular user के लिए मुझे test करना है, test as a role. Now you can see we have 3 countries over here, right? So ये user point of view और manageable point of view easy है. आपके पास बस एक एक्सेल रहेगा जिसमें आप मेंटेन कर सकते हो. मतलब आपको अगर किसी पर्टिकुलर यूजर का किसी लोकेशन का एक्सेस रिमूव करना है तो सिंपली यू डिलीट दैट रो एंड रिफ्रेश योर रिपोर्ट्स, दैट यूजर्स एक्सेल विल बी रिमूव. सो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज काइंड ऑफ इजी हैंडल करने के लिए. हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सेस किस यूजर को देना है. तो लिस्ट एक इनफ, एक सिंपल टेबल इनफ है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से यूजर को कौन सी लोकेशन का एक्सेस दिया हुआ. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? So this is what the static row level security and dynamic row level security. In real practice, we always prefer to use dynamic row level security, right? आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज रो लेवल सिक्योरिटी. रो लेवल सिक्योरिटी में आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द रो लेवल सिक्योरिटी. सो व्हाट इज रो लेवल सिक्योरिटी? So row level security is nothing but you restrict a user to see a data, whatever filtrations you apply, right? आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, डेफिनेशंस आप आपके जो अंडरस्टैंडिंग से बनती है वो आप उसको बता सकते हैं. उसको बस कंसेप्ट से मतलब है, नॉट द टेक्निकल वर्ड्स. ओके. सो डेटा, जो डेटा सेट है, डेटा सेट्स के ऊपर जो फिल्ट्रेशंस आप स्पेसिफाई करते हो बेस अपॉन लेट्स से लोकेशन, लेट्स से product, whatever the filtrations criteria you have. So the end users will be able to see only that location, that filtrations criteria, or the data with the filtrations criteria. So this is what the RLS. So then you need to specify ki what are the different types of RLS. Row level security having 2 types: dynamic row level security and static row level security. In a static row level security, you need to create a multiple roles based upon your requirement and assign a users into the particular roles, right? But in a static row level security, it is kind of hard to maintain it because it might be end up with the creation of a multiple roles, and the handling those roles user access is kind of a tricky. So to overcome these difficulties, to the limitations, we can use a dynamic row level security. So what we can do is, in dynamic row level security, we create one sheet which contains a email address and the filtrations criteria where we wanted to give the access to that particular users on some specific filtrations criteria. Let's say in our case it is in location.
माइट बी आपके केस में वो हो सकता है कॉन्टिनेंट या कुछ भी फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हो सकते हैं. यू कैन गिव दिस एग्जांपल. लेट्स से we have a locations fields and we wanted to give a specific location access to the specific user. Then we prepare one sheets. In that sheets we prepare a email address and the location names, and then we add this table as a separate table in our model in Power BI desktop. We create a relationship between those two tables, and then we go to the manage role sections and create one dynamic role over there using a functions user principal name. ये specifically mention होना बहुत ज़रूरी है when we talk about dynamic row level security. आपको ये word use करना ही पड़ेगा कि dynamic row level security, when you create that particular role, you use user principal name function. Might be that times interviewer asking about, so what is the user principal name. So you say the user principal name functions gives you a email address for that particular users who log into the Power BI services when reports are open in Power BI services. Understood? इसलिए हमने यूजर प्रिंसिपल नेम का फंक्शन यूज किया हुआ है because we use email addresses and the locations. So we specify over here की email address and that particular email address having which location access. Right? So once all this done, you create a role over there, you publish these reports into the Power BI services, and once it is in Power BI services, you go to the security sections of the data sets and apply a user's email address over there or add a email address over there. So once you added there, a user is opening the reports in their Power BI services with their email address. So that particular users able to see only particular locations data which you give the access. So this is what wholly you need to explain regarding the row level security, right? Online student, समझ में आ रहा है? Did you got what I am trying to explain you all? Yes, sir. Yes. Okay, so this is all about row level security. Okay, now when we studied about row level security, at the one points I manually refresh these data sets, I again publish this and we check that. So those are some manual processes. So one things you need to understand, so when this reports is in Power BI desktop, आप reports Power BI desktop में आपके पास ओपन है, इस रिपोर्ट का जो सोर्स है वो सोर्स भी आपके सिस्टम में ही है. एक फोल्डर में आपने वो कुछ एक्सेल फाइल्स रखी हुई है जिनको आपने कनेक्ट किया हुआ है एंड आप जब ये रिफ्रेश करते हो, सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, इट कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर फोल्डर, fetch the data and refresh this report. Means whenever there is a additions of a data in your excel files, let's say मेरे पास सेल्स का डेटा है, राइट, और उस सेल्स के डेटा में हमने फोल्डर कनेक्टर यूज किया हुआ, राइट. तो लेट्स से आपने वहाँ पे सेल्स की कुछ एक नई फाइल ऐड कर दी एंड देन यू रिफ्रेश इट, तो क्या होगा कि जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे वो डेटा यहाँ पे ऐड नहीं होगा, बट यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो जल्दी ऐड हो जाएगा. बट नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी मेरे पास कितने साल का डेटा है, व्हाट द डेटा वी हैविंग 3 years ऑफ डेटा, राइट. सो लेट्स डू वन थिंग, just add a data in that particular files in order to create some actual scenario. Where the file is, let me check. हम चेक कैसे कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन क्या है. लेट्स से सेल्स का जो डेटा है वो कौन सी लोकेशन पे रखा हुआ है. वी गो टू दिस, ओपन दिस डेटा सोर्स सेटिंग, you can see your sales data, right? Where is it? It's product adventure world. This is your folder. कहाँ पे है वो, डाउनलोड सेक्शंस में है, एडवेंचर वर्क CSV फाइल्स, राइट. गो टू द डाउनलोड सेक्शन, दिस इज द फोल्डर, ship it, this is the folder, adventure work CSV. Okay,
So let's talk I think we applied some filtrations over here. We already have a sales 2018 data. Let me see. Close it. I'll open the transform data. I think we apply some filtrations on the data in order to fetch only 3 years data. Quickly check that. So I'll open this sales. Let me add a quick column over here based upon this order date. Date where see I'm having 4 years of data. Okay. Then where we filter this, I'm not able to see any data. We have a 4 years of data. Doesn't apply. Let's see. Just a minute. We have the sales fact only, right? Mention table. This sales fact. Okay, fine. Let's not deep into that. So what I'm trying to say is, let's say मेरे पास डेटा में कुछ चेंजेस होता है and I refresh this report in Power BI desktop, then it will be capture that changes because मेरा जो रिपोर्ट है वो भी मेरा पावर BI डेस्कटॉप जो इंस्टॉल है वो मेरा सेम मशीन पे इंस्टॉल है जहाँ पे मैंने डेटा रखा हुआ है. इन शॉर्ट मेरा सोर्स एंड पावर BI डेस्कटॉप एक ही लोकेशन पे, राइट. सो उसको फिर क्या मिल रहा है, वो फोल्डर की लोकेशन मिल रही है. बट जब ये सेम रिपोर्ट मैंने यहाँ पे पावर BI सर्विसेज पे पब्लिश किया, राइट, यहाँ पे ये जो सेम रिपोर्ट है ये यहाँ पे मैंने पब्लिश किया. The same report is over here also. Let's go to back. Let me open this report, DA3 morning batch. Same report is there, right? So अगर मैं यहाँ पे source level पे कुछ changes करता हूँ and I wanted to refresh these changes over here. So how we can do this? Because when I trying to refresh it, how we can refresh this? Go to this report. यहाँ पे देखो जब आप डेटा सेट के ऊपर होवर करते हो तो यहाँ पे आपको एक रिफ्रेश बटन दिखता है, रिफ्रेश नाउ. बट रिपोर्ट के ऊपर नहीं होता. सो यू रिफ्रेश द डेटा सेट विल बी अपडेटेड विद द डेटा एंड रिपोर्ट विल ऑटोमेटिकली शो यू अपडेटेड डेटा.
सो व्हेन यू ट्राइंग टू रिफ्रेश दिस मैन्युअली, दिस इज योर मैन्युअल रिफ्रेश, आप मैन्युअल रिफ्रेश जब ट्राई करते हो, सो यू सी दिस एरर मैसेज, व्हाट इट शोइंग, when I click on this, you see details, it's saying scheduled refresh is disabled because at least one data source is missing credentials. इसका मतलब होता है कि जो फोल्डर का पाथ, जो ये रिपोर्ट जब आपने बनाया था उस टाइम पे जो सोर्स आपने यूज़ किया वो आपके लोकल सिस्टम में था, तो इसीलिए जब रिपोर्ट पावर बीआई डेस्कटॉप पे ओपन हो रहा था उसको वो सोर्स मिल रहा था रिफ्रेश करने के लिए। बट व्हेन यू पब्लिश दिस इनटू द पावर बीआई सर्विसेज, सो इसका मतलब ये रिपोर्ट अभी क्लाउड के ऊपर है एंड डेटा सोर्स कहाँ पे है, आपके मशीन के ऊपर है। सो देर इज नो कनेक्शन बिटवीन योर डेटा सोर्स दैट इज अवेलेबल इन योर मशीन एंड दिस क्लाउड, दिस सर्विसेज, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? से फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पावर बीआई रिपोर्ट बनाया है ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर बनाया, राइट। ये मैंने किस सोर्स से यूज करके किया, लेट्स से यहाँ पे मेरा एक फोल्डर था जिसमें एक्सएलएस फाइल थी, राइट, एक्सेल फाइल थी, एक फोल्डर था मेरे पास मेरी मशीन के अंदर जिसको यूज करके मैंने क्या किया, ये पावर बीआई रिपोर्ट बनाया डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। सो व्हेन आई, अभी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पावर बीआई डेस्कटॉप पे तो ये रिफ्रेश होगा। बट जब मैं इसको पब्लिश किया पावर बीआई सर्विसेज पे, पावर बीआई रिपोर्ट इन सर्विस, ये अभी सर्विसेज पे मैंने कैसे किया, इस रिपोर्ट को मैंने पब्लिश किया वर्कस्पेस के अंदर तो ये सर्विसेज पे चला गया। ये क्लाउड सर्विस है, सेपरेट सर्विस है। सो देर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस एंड ऑल्सो नॉट दिस एंड दिस। सो जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं तो मुझे वो एरर मैसेज दे रहा है कि उसको क्या मिलना है, सोर्स नहीं मिल रहा है रिफ्रेश होने के लिए। सो इसको और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बीच में एक ब्रिज चाहिए, हमें एक ब्रिज चाहिए यहाँ पे बीच में। सो दैट ब्रिज इज नथिंग बट अ डेटा गेटवे। सो ये गेटवे क्या करेगा, गेटवे यहाँ से रिक्वेस्ट लेगा, सो बेसिकली इट टेक द डेटा फ्रॉम दिस ड्यू टू दिस एंड देन ये रिफ्रेश होगा। सो हम इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि व्हाट इज दिस गेटवे। समझ में आ रहा है अभी? ये ये नॉर्मल फ्लो है, आपका रिपोर्ट आपके मशीन के ऊपर है, डेटा सोर्स भी सेम मशीन के ऊपर है, यू रिफ्रेश द रिपोर्ट, रिपोर्ट रिफ्रेश होगा क्योंकि उसको सोर्स मिल रहा है। बट व्हेन यू पब्लिश दिस रिपोर्ट इनटू द सर्विसेज एंड ट्राई टू रिफ्रेश इट, उसको सोर्स नहीं मिल रहा है। तो in order to create a bridge between your local data, this data we can say this is your क्या बोलते हैं उसको टर्म, just forgot it. There are two types of sources, right? Cloud and one is on premises. The word term is on premises. So how you distinguish between this on premises and cloud? So I'm talking about this Power BI desktop and this folder which is available in my machine. ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल किया हुआ है और उसी सिस्टम के अंदर मैंने एक फोल्डर पे मेरी एक्सेल फाइल रखी हुई है। ये यहाँ तक क्लियर है? सो इन दैट केस मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप एंड मेरा डेटा एक ही मशीन पे। सो यहाँ पे दिस मशीन जहाँ पे मेरा डेटा है वो मेरे लिए काम कर रहा है सर्वर। मैं पावर बीआई डेस्कटॉप से सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ और डेटा को ले रहा हूँ। बट इस केस में क्या है, मेरे केस में क्या है, मेरा सर्वर एंड मेरी पावर बीआई डेस्कटॉप एक ही लोकेशन पे, एक ही सिस्टम पे। इस केस में वैसा नहीं है, आपका पावर बीआई जो है वो क्लाउड के ऊपर है। आपने रिपोर्ट जो पब्लिश किया वो सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट की पावर बीआई सर्विस, आप ब्राउजर पे ओपन करते हो उसको। दैट मीन्स आपने डेटा को क्लाउड पे डाल दिया है, अभी ये रिपोर्ट को आपने क्लाउड पे डाल दिया है।
बट योर डेटा स्टिल इन योर सिस्टम, आपके मशीन के ऊपर ही ये डेटा, वो क्लाउड के ऊपर नहीं है। क्लाउड मतलब लेट्स से शेयर पॉइंट नहीं है, राइट? या आप वन ड्राइव वगैरह जो बोलते हो जहाँ पे आप क्लाउड पे डेटा रखते हो, वैसा कोई क्लाउड नहीं है, आपका डेटा आपके मशीन के अंदर ही है, तो आप लोकली सेव कर रहे हो डेटा को। सो ऐसे डेटा को हम कहेंगे ऑन प्रीमाइसेस सिस्टम। तो व्हेन यू वांटेड टू कनेक्ट विथ ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स with the Power BI services which is in the cloud, you needed a bridge between this. This bridge is called as a gateway. This is the simple definitions of gateway. When you wanted to, so interviewer ask about what is data gateway. So data gateway is nothing but a bridge between on-premises data source and Power BI services. Why we use this? In order to fetch the data from on-premises data source to Power BI services for the refresh, for the data refresh. ओके, ये अंडरस्टूड होगा। क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइसेस, ऑन प्रीमाइसेस मतलब आप डेटा को लोकली स्टोर करते हो। लेट्स से इफ यू गो इन डिटेल मोर अबाउट, लेट्स से एक कंपनी है, ABC नाम है कंपनी का, कंपनी का एक सर्वर रूम है, ठीक है। सर्वर रूम मतलब क्या, वहां पे उन्होंने क्या रखे हुए, हार्ड ड्राइव्स लगा के रखे हुए डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, उन हार्ड ड्राइव में उनका डेली का जो डेटा है वो स्टोर कर रही है लोकली उनके सर्वर के अंदर। तो उस केस में उस कंपनी का जो डेटा सोर्स हुआ वो हुआ ऑन प्रीमाइसेस। कंपनी उनका खुद का डेटा खुद के सर्वर के अंदर लोकली सेव कर रही है, राइट। और सेकंड एग्जांपल, आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, मान लो 1 TB का हार्ड ड्राइव है आपके पास, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपके मोबाइल के अंदर की स्पेस अगर फुल हो रही है तो आप क्या कर रहे हो, मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हो लैपटॉप के अंदर, डेटा को ले रहे हो और उस हार्ड ड्राइव में जाके सेव कर रहे हो। तो ऐसे कंसिडर करो कि हार्ड ड्राइव आपका एक स्टोरेज हुआ जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं। वो कहीं पे क्लाउड पे नहीं है, वन ड्राइव पे या शेयर पॉइंट पे नहीं, वो कहाँ पे, आपके एक डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर आपने लोकली उसको स्टोर करके रखा है, उसका मेंटेन आप ही कर रहे हो, राइट। सो उस केस में अनदर ऑप्शन क्या है कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट डेटा इन योर वन ड्राइव, या सॉरी इन योर हार्ड ड्राइव, आप क्या कर रहे हो, अभी डेटा को वन ड्राइव पे डाल रहे हो। आपके पास 1 TB की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर रहे हो, वन ड्राइव पे डेटा को अपलोड कर रहे हो, आपकी फोटोज वगैरह जो है वन ड्राइव पे रख रहे हो। सो वन ड्राइव क्या हुआ फिर, आपका क्लाउड स्टोरेज हुआ। आपका लोकल हार्ड ड्राइव आपका ऑन प्रीमाइसेस हुआ, वन ड्राइव आपका क्लाउड स्टोरेज हुआ। सेम वे दैट कंपनी जो पहले लोकली अपने डेटा को खुद सेव कर रही थी हार्ड ड्राइव्स के अंदर, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रोच किया अज्यूर को। हमारे जो क्लाउड्स प्रोवाइडेड सर्विसेज है ना, जैसे AWS है, देन अज्यूर है, राइट, अमेजॉन है, ये क्या करती है, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है। वो बोलती है कि आप आपका जो डेटा है आप लोकली मत स्टोर करो, हम आपको स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन। आप क्या करो, आपका डेटा हमारे सर्वर के अंदर स्टोर करो ऑनलाइन, उसका मेंटेनेंस वगैरह जो है वो हम देख लेंगे, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको बस क्या करना है, आपको मंथली बेसिस में हमें पे करना है कि आप इतना स्टोरेज ले रहे हो हमसे, तो इतना पे करो हम मंथली बेसिस पे। तो उस केस में कंपनी का बेनिफिट क्या हुआ, कंपनी को अभी ये हेडेक नहीं है कि मेरा डेटा स्टोरेज कितना बाकी है, सर्वर का जो उसको पहले मेंटेन करना पड़ता था सर्वर, अगर सर्वर क्रैश वगैरह हो गया, मेमोरी फुल हो गया, तो अगेन उसका काम पे जो अफेक्ट पड़ रहा था वो सारी चीज़ें क्या हो गई, इलिमिनेट हो गई। उसको अभी टेंशन नहीं है कि सर्वर का मेंटेनेंस करना है, स्पेस का इशू है। अगर उसको और स्पेस चाहिए, सिंपली वो क्या करेगा, उन क्लाउड वाले के पास कनेक्ट करेगा, उनको बोलेगा कि मुझे अभी मेरा जो स्टोरेज है, आपने जो 100 TB दे के रखा था मुझे, मुझे अभी 200 TB चाहिए। वो विद इन अ मिनट्स और विद इन अ सेकेंड्स वो आपका कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे। जितना कैपेसिटी आप इंक्रीज करोगे उतना आपको क्या करेगा, मंथली पे करना पड़ेगा जितना कैपेसिटी के हिसाब से। सो इस केस में आपको ना सर्वर को बंद करने की ज़रूरत पड़ी, राइट, आपका काम बंद नहीं हुआ, ना आपको ये टेंशन है कि मेरा मेमोरी कब फुल होने वाला है। सर्वर पे क्लाउड पे जब आप यूज़ करते हो, जब आपका मेमोरी फुल होने को लगता है तो हमें नोटिफिकेशन आता है कि आपका मेमोरी फुल होने वाला है, या इतना हुआ है, 80% हुआ है, 70% हुआ है। उस हिसाब से आप प्रायर डिसीजन ले सकते हो कि मुझे मेमोरी बढ़ा के लेनी है कि नहीं लेनी है, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्लाउड में फिर बेनिफिट्स आते हैं। तो
सेम कंसेप्ट बताने की बात क्या है कि ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है डेटा गेटवे। क्लाउड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें डेटा गेटवे की ज़रूरत नहीं होती है। सो पावर बीआई सर्विसेज में जो रिपोर्ट्स है वो अगर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स से बनाए गए हैं तो आपको लगेगा डेटा गेटवे। अगर वो क्लाउड के किसी डेटा सोर्स से बनाए गए हैं देन यू डोंट रिक्वायर डेटा गेटवे। दिस सिंपल एज इट इज। बस ये कंसेप्ट दिमाग में रखो। डेटा गेटवे कब चाहिए? डेटा गेटवे कब चाहिए? इफ योर डेटा सोर्स इज ऑन प्रीमाइसेस देन यू नीडेड अ डेटा गेटवे। कब नहीं चाहिए? योर डेटा सोर्स इज इन क्लाउड, तो आपको डेटा गेटवे की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज, इस डेटा गेटवे को इंस्टॉल कहाँ पे किया जाता है? डेटा गेटवे क्या है? एक ब्रिज, मतलब वो एक एप्लीकेशन है। वो क्या करते हैं हम? वो हम इंस्टॉल करते हैं सर्वर के ऊपर। जहाँ पे हमारा सर्वर है उस सर्वर के ऊपर हम क्या करते हैं? उस डेटा गेटवे को इंस्टॉल करते हैं उस मशीन के ऊपर। अभी हमारे केस की बात करें तो हमारा जो मशीन है यही हमारा सर्वर है, क्योंकि इसी के अंदर डेटा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? कभी कभी आप सर्वर रूम में देखते हो कि देर आर मल्टीपल सिस्टम लगे रहते हैं, 5-10 पीसी लगे रहते हैं, राइट। पर उसमें से एक पीसी ऐसे होता है जो मास्टर कंट्रोल होता है सबका। तो हमें कहाँ पे इंस्टॉल करना होता है? उस मास्टर कंट्रोल के अंदर उसको इंस्टॉल करना होता है डेटा गेटवे को। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? किसी को कुछ डाउट है इसमें? क्योंकि ये कंसेप्चुअली मैं आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। कभी कभी हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है कि वी नीड टू इंस्टॉल डेटा गेटवे, तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं कि यार इंस्टॉल करना है लेकिन कहाँ पे करूँ इसको इंस्टॉल? मेरे सिस्टम में करूँ या किसी और सिस्टम में करूँ? कहाँ पे करना है? तो क्लियर पिक्चर माइंड में रखो कि डेटा गेटवे आपको इंस्टॉल करना है सर्वर के ऊपर। अगर आपका बॉस, आपका मैनेजर आपको आस्क करता है कि हमें डेटा गेटवे इंस्टॉल करना है, देन योर फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम इज कहाँ पे इंस्टॉल करना है, विच सर्वर वी नीड टू इंस्टॉल। ठीक है। ऑब्वियसली क्लाइंट के सर्वर पे ही इंस्टॉल होता है वो, बट कौन सी सिस्टम पे इंस्टॉल करना है उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह आपको लेने पड़ते हैं फिर बाद में। दिस इज द प्रोसेस से ही काम होता है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि कंसेप्चुअली कि चल क्या रहा है। डेटा गेटवे इंस्टॉलेशन चल रहा है बट हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या एक्चुअली वो कर रहे हैं, कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। और ब्लाइंडली फिर हम जब रिपोर्ट्स बनाते हैं, पब्लिश करते हैं डेटा गेटवे के टाइम पे, जब हमें कनेक्शंस की बारी आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं, फिर इधर उधर भागना पड़ता है, इससे पूछो उससे पूछो। तो उससे अच्छा थोड़ा कंसेप्चुअली अभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। कंसेप्ट सिंपल रखो माइंड में कि डेटा गेटवे क्या है, कब उसकी ज़रूरत पड़ती है और वो कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। डेटा गेटवे क्या है? ऑन प्रीमाइसेस एंड क्लाउड सर्विसेज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, राइट। जब हमारा डेटा ऑन प्रीमाइसेस होता है देन एट दैट टाइम वी रिक्वायर दैट डेटा गेटवे। गेटवे हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? हम सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं गेटवे, जहाँ पे डेटा रखा हुआ है। ऐसा कोई सिस्टम होता है, सर्वर मतलब एक सिस्टम होता है, ठीक है। उस सिस्टम, वो सिस्टम क्या करता है? जो हार्ड ड्राइव्स लगे होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस लगे होते हैं, उनको वो सिस्टम कनेक्ट होता है, राइट। आपके हार्ड ड्राइव में, आपके पास पर्सनल हार्ड ड्राइव है आपका, वो हार्ड ड्राइव का डेटा आप कैसे देखते हो? उसको आप आपकी सिस्टम को कनेक्ट करके ही देखते हो ना। या पेन ड्राइव की बात करूँ तो पेन ड्राइव का डेटा कैसे देखते हो? सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, एक मशीन को, एक पीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन सी व्हाट इज द डेटा, कितना स्टोरेज बाकी है, कितना क्या है। तो इन शॉर्ट, उस पीसी का, उस कंप्यूटर का एक्सेस होता है, या उस पीसी को एक्सेस होता है उन स्टोरेज डिवाइसेस का। तो उस पीसी पे आपको क्या करना है? गेटवे को इंस्टॉल करना है। सो जब उस पीसी पे गेटवे को इंस्टॉल करोगे, इट मीन्स वो गेटवे उन स्टोरेज डिवाइसेस को या उन डेटा को कनेक्ट होगा, एंड देन वहां से वो क्यूरी फायर करके आपके पावर बीआई सर्विसेज को कनेक्ट होगा। अभी थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है? ये जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है, ये समझ में आ रही है कि पावर बीआई सर्विसेज एंड फोल्डर्स जो हमारा लोकल ऑन प्रेमाइसेस पे है, उसके बीच में सर्वर पे हम ये इंस्टॉल करते हैं, मतलब ये किसी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा गेटवे, फिर ये स्टोरेज को कनेक्ट होगा, एंड देन यहाँ से हम पावर बीआई रिपोर्ट क्लाउड पे कनेक्ट होंगे। अभी माइंड में पिक्चर क्लियर हुआ? हमारे केस में हमारा सर्वर भी यही है, और जिस
सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, वो सिस्टम भी यही है। इसीलिए मैं जो गेटवे इंस्टॉल करने वाला हूँ या आप लोग जो गेटवे इंस्टॉल करने वाले हो प्रैक्टिस के लिए, वो आपकी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने वाले। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन डाउनलोड दिस डेटा गेट। हमारे पास जब पावर BI सर्विसेज में वी आर इन द पावर BI सर्विसेज, वी हैव दिस ऑप्शंस डाउनलोड। I click on this download buttons. You see this data gateway. I click on this data gateway. It will be, I'll opening a new window. मेरे पास दो options है. When we talk about data gateway, we have two options. First is the standard mode. Second one is the personal mode. We are now installing personal mode. This is our personal use case के लिए. But industry में होता है standard mode. इसको कभी कभी organizational data gateway भी कहा जाता है. ठीक है, दोनों का इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम है, बट देर आर मोर ऑप्शंस टू फिल इन द स्टैंडर्ड मोड। आप इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल करने का ट्राई कर सकते हो। दोनों चलता है पर्सनल के लिए, बट स्पेसिफिकली वी गो विद दिस पर्सनल मोड नाउ। दिस स्टैंडर्ड मोड इज फॉर द इंडस्ट्री। एक्चुअल रियल लाइफ में दिस विल बी यूज, नॉट दिस। ये अभी आप हम अपने सिस्टम के लिए पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी यूजिंग दिस वन पर्सनल मोड। ये सिंगल यूजर के लिए, दिस इज फॉर मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर इन द सेंस, जैसे कंपनी में 10 पावर BI डेवलपर है, सो वो 10 पावर BI डेवलपर 10 डेटा गेटवे इंस्टॉल नहीं करेंगे। वो एक ही डेटा गेटवे स्टैंडर्ड वाला इंस्टॉल करेंगे जो 10 ही की 10 यूज़ करेंगे। डेटा गेटवे एक ही रहेगा, 10 यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल वाला क्या रहेगा? पर्सनल वाला वो उसके खुद के सिस्टम के लिए। अभी खुद के सिस्टम के लिए इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आप SQL सर्वर आपने सीखा है, SSMS सीखा है ना, SQL सीखा है आपने। तो जब SQL आपने इंस्टॉल किया था, आपकी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया, राइट? तो आपके सिस्टम के ऊपर जो इंस्टॉल किया, एंड इफ आई कनेक्ट माय पावर BI टू दैट SQL सर्वर, वो SQL सर्वर क्या हुआ? ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्स हुआ। वो क्लाउड पे नहीं है, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है। वो टेबल वगैरह जो आपने उस SQL सर्वर के अंदर बनाए हुए हैं, वो क्या रहेंगे? वो आपके सिस्टम में ही है, वो कहीं पे और क्लाउड पे नहीं है। तो जब मैं पावर BI को कनेक्ट करूंगा उस SQL सर्वर पे जो आपने कनेक्ट किया हुआ है या बनाया हुआ है, तो मुझे चाहिए होगा डेटा गेटवे। व्हेन आई रिफ्रेश दिस रिपोर्ट, वो डायरेक्टली रिफ्रेश नहीं होगा। पावर BI सर्विसेज पे मुझे डेटा गेटवे चाहिए होगा उस SQL सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो उस केस में मैं पर्सनल मोड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज डेटा सोर्स मेरे पर्सनल सिस्टम में ही है, एंड रिपोर्ट जो मैं चेक करना चाहता हूँ वो मैं उसी डेटा सोर्स से कनेक्ट करके चेक करना चाहता हूँ। इन दैट केस आई डोंट नीड अ स्टैंडर्ड मोड, पर्सनल मोड इज फाइन। बट अगर लेट से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम चल रहा है, कंपनी का सर्वर है, कंपनी के सर्वर के अंदर SQL सर्वर एक बनाया गया है, देन इन दैट केस आपको स्टैंडर्ड मोड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उस केस में वो जो डेटा गेटवे है वो मल्टीपल यूजर जो पावर BI वाले हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। So personal mode, I'll just click on this personal mode in order to download this. It took some time to download. जब तक डाउनलोड होता है तब तक आई नीड सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड। इफ एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया या कुछ रिपीट करना है, ऐसा कुछ रहेगा तो अभी बोलो। ऍक्च्युअल मध्ये सर्व आपल्या सर्व लॅपटॉपवर नसणार ना, VM मशीनवर असणार ना ज्यावेळेस क्लायंटवर हाँ, तो डिपेंड असेल करता है। जैसे आपने बोला कि VM क्या है, सबको पता है VM क्या होता है। VM मतलब वर्चुअल मशीन्स जिसको कहा जाता है। वर्चुअल मशीन्स मतलब जैसे मेरा सिस्टम है, ठीक है, मेरा क्लाइंट है लेट्स से किसी और रीजन में, तो वर्चुअल मशीन मतलब मैं वर्चुअली का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल नहीं होता है। आप क्या करते हो, आपको एक क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किया जाता है,
जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, टीम व्यूअर सुना है नाम? टीम व्यूअर। टीम व्यूअर मतलब क्या होता है कि लेट्स से एक एप्लीकेशन है, अ, मेरे पास लेट्स से 2 सिस्टम है। एक सिस्टम यहाँ पे है, दूसरा सिस्टम लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और बंदे के पास है। हम दोनों सेम लोकेशन पे नहीं है। लेट्स से मैं पूना में लोकेशन में हूँ और वो है लेट्स से बैंगलोर लोकेशन में वो बंदा, ठीक है? तो मैंने मेरे सिस्टम में एक टीम व्यूअर का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसने भी टीम व्यूअर का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। तो टीम व्यूअर से वो क्या करेगा, मुझे एक रिक्वेस्ट भेजेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा टीम व्यूअर का एप्लीकेशन ओपन करूँगा, वो वहाँ पे ओपन करेगा। वो वहाँ पे रिक्वेस्ट मुझे भेज सकता है, मैं यहाँ से उसको भेज सकता हूँ। जब मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा, उसको मेरे सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। ये जो स्क्रीन मैं देख रहा हूँ, वो स्क्रीन वो देखने लगेगा। सो ही कैन एबल टू, वो किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जा सकता है, कोई सेटिंग इनेबल कर सकता है। सो दैट्स व्हाट टीम व्यूअर इज़ डूइंग, आपको सिस्टम का एक्सेस देता है। इन शॉर्ट स्क्रीन शेयरिंग जो होता है ना, आप स्क्रीन शेयर करते हो उसको और वो एक्सेस लेके फिर वट एवर ही कैन डू। सो दैट इज कॉल्ड एज सम काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन्स। सो वर्चुअल मशीन्स, एक अनदर एग्जांपल मतलब क्लाइंट का सर्वर जो होता है, जिस मशीन के ऊपर गेटवे वगैरह सारा इंस्टॉल करना है, उनका उन्होंने क्या करता है, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके रखा है, ठीक है? सो माइट बी उसके लिए आपको वीपीएन नाम की एक कंसेप्ट आती है। तो वीपीएन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उस वीपीएन के थ्रू आपको वर्चुअल मशीन्स पे कनेक्ट करना होता है। तो जब आप वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको उस कंप्यूटर का स्क्रीन दिखता है, इन शॉर्ट, ठीक है? तो आप फिर जैसे आप आपके सिस्टम में काम करते हो, आप उस वर्चुअल मशीन पे काम करते हो, बस डिफरेंट कुछ नहीं है। तो फिर आपको सर्वर का एक्सेस होता है, उस सर्वर पे ही आपको डेटा गेटवे वगैरह इंस्टॉल करना होता है। तो आप सिंपली वहाँ पे ऐप डॉट पावर बी आई डॉट ओपन करते हो, वहाँ पे डाउनलोड करते हो स्टैंडर्ड गेटवे और वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हो। सिंपल एज दैट। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये बस वर्ड भारी भारी है, बट एक्चुअल यूज केस में सिंपल ही है वो, ठीक है? वर्चुअल मशीन का एक्सेस आपको दिया जाता है, डेटा गेटवे जहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है उस मशीन का आईपी वगैरह बस आप चेक कर लेते हो कि जिस मशीन को आप कनेक्ट कर रहे हो वही सर्वर है क्या, जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन करते टाइम पे कौन सी ईमेल एड्रेस को यूज़ करना है, जो एडमिन यूज़र है पावर बीआई का, उसके ईमेल एड्रेस से ही आप गेटवे को इंस्टॉल करते हो मोस्टली। बिकॉज ऐसा करने से क्या होता है, जो स्टोरेज, जिस स्टोरेज को आपको कनेक्ट करना है, एडमिन को ही सारी स्टोरेज का एक्सेस रहेगा, राइट? किसी पर्टिकुलर यूज़र की ईमेल एड्रेस है, लेट्स से मैं एक पावर बीआई यूज़र हूँ, मैं एडमिन नहीं हूँ, तो मुझे स्टोरेज का सारी एक्सेस नहीं रहेगा, लेकिन एडमिन को रहता है। सो इसलिए पावर बीआई एडमिन का जो ईमेल एड्रेस है उसको यूज़ करके हम पावर बीआई गेटवे इंस्टॉल करते हैं, डेटा गेटवे इंस्टॉल करते हैं। सो मेरा गेटवे इंस्टॉल हुआ, आई जस्ट ओपन इट, just click on this to install it. Okay, so firstly it gives me something this गेटवे कहाँ, उसका एक लोकेशन देगा जहाँ पे ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। I'll say simply accept and then say update. Okay, ये फेल हुआ है, let's check why. I'll go to the my setting. Say control panel. Programs, programs and features. You see this on-premises is already there. That's why it's failing. I'll just click on this, uninstall it.
अभी आपके केस में वो फेल नहीं होगा, इंस्टॉल होगा, डोंट हैव दिस, मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए वो फेल होगा। ओके, नाउ वी क्लोज दिस एंड अगेन ट्राई टू इंस्टॉल इट। ये कोई एक्टिविटी है क्या आज? ठीक है। So it's installing. Once it is installing, it will be again popping up, asking for I think email address. Let's see. You see this, your gateway is all set up. You simply say sign in, put the email address you have, and the next one. Again, authenticating this user. Okay, the gateway is online and ready to use. Close. Now gateway is online means गेटवे हमने इस सिस्टम के अंदर डाला हुआ है। जब तक मेरा सिस्टम ऑन है गेटवे ऑनलाइन रहेगा। मैंने सिस्टम शट डाउन किया, गेटवे ऑफलाइन चला जाएगा। सर्वर के केस में वैसा होता नहीं, सर्वर 24/7 चालू रहता है। सो गेटवे इज ऑलवेज ऑन। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इसको ट्रीट करो एज ए सर्वर। सर्वर ऑन है, सर्वर हमेशा 24/7 ऑन रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो बंद नहीं होता कभी। तो जब तक सर्वर ऑन है तब तक गेटवे ऑनलाइन रहेगा। So I'll go to the Power BI services now. Over here, I'll simply refresh this. In order to check the data gateway we install, I'll go to the setting. We have this manage and connections and gateways. I'll click on this. On-premises data gateway. You see, this is the gateway that I install. If you click on the status, it's saying online. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Now next step, go to the workspace. Again go to this data set setting. इसके 3 dots पे क्लिक करूँगा तो it goes to the setting. We have a different setting over here. You schedule this refresh and all these things. ठीक है, so first thing in the setting is the refresh history.
when I click on the refresh history, it's showcasing me when this data set is got refresh. हमने इसको मैन्युअली ऑन डिमांड रिफ्रेश करने की कोशिश की थी, ये फेल हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रिफ्रेश हिस्ट्री हम यहाँ पे देखते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फेल्योर का आपको डिटेल देखना है, यू क्लिक ऑन दिस शो, इसमें ये डिटेल दिखाएगा उसका कि क्या एरर कोड है, क्या है। यहाँ पे अपन क्या क्या देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शंस। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो नाउ यू कैन एबल टू सी द गेटवे दैट यू इंस्टॉल। यहाँ पे मुझे वो गेटवे दिख रहा है जो गेटवे मैंने इंस्टॉल किया है, राइट। आई सी डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे जो मैंने टेबल्स यूज किए हैं उस डेटा सेट के लिए, वो टेबल्स की लिस्ट दिख रही है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है एडिट क्रेडेंशियल्स, शो लिनेज व्यू। आई क्लिक ऑन दिस एडिट क्रेडेंशियल्स। I just say Windows without impersonate. I'll keep the asset there as it is. Put the privacy setting to none. Basically, it is an organizational, but for the time being, I'm putting none. I'll say sign in. देखो इसका एरर कोड चला गया। सेम वे फिर अदर्स, साइन इन, साइन इन, okay, correct. Once it is done, now you go to this refresh section. यहाँ पे आपको टाइम जोन दिखेगा, किस टाइम जोन में आपको सेट करना है रिफ्रेश का टाइमिंग। तो यहाँ पे मैं यूटीसी का टाइमिंग है, मैं जो चाहे टाइम जोन ले सकता हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ ये यूटीसी चेन्नई कोलकाता, एंड आई विल से ऑन दिस ऑटो रिफ्रेश ऑन। फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है मुझे इसकी, ये मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, डेली, वीकली। इट टोटली डिपेंड अपॉन योर लाइसेंस। इफ यू होल्डिंग पावर BI Pro लाइसेंस, देन इट गिव्स यू अ डेली 8 टाइम रिफ्रेश। जैसे मैंने यहाँ पे डेली सेट किया, ऐड अनदर टाइम पे मैं क्लिक करूंगा तो डेली पे कितने बजे उसको रिफ्रेश करना है वो आप टाइम दे सकते हो इस डेटा सेट को, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा उस टाइम पे। अगर मैं ऐसे ऐड करता गया, यू सी 8 टाइम्स कर सकता हूँ। अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे, ऐड अनदर टाइम। सो डेली में 8 बार कर सकता हूँ। इफ आई एम हैविंग अ प्रीमियम लाइसेंस, देन इट गोज टू आई थिंक 48 आवर्स, 48 टाइम्स। मतलब हर आधे घंटे में मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। So if you have a Pro, 8 times. If you have a Premium, 48 times daily. Understood? मैं इनको निकाल रहा हूँ, बस एक ही रख रहा हूँ। जैसे मैं सुबह का टाइम दे रहा हूँ इसको 10 बजे, 10 बजे, and I'll say apply. ठीक है, I'll set to go. I'll go to the Rahul test workspace again, and this time I'm trying to refresh this manually. You see this refresh is happening. नाउ व्हाट इज डूइंग पावर BI सर्विसेज, क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से जैसे मैंने इसको ट्रिगर किया वो कर रहा है डेटा गेटवे को कनेक्ट। डेटा गेटवे वहाँ से कनेक्ट कर रहा है मेरे पर्सनल सिस्टम के एक्सेल फाइल को, स्टोरेज फाइल को, वहाँ से डेटा को पुल कर रहा है एंड इट गिव टू द डेटा ओवर हियर। तो ऐसे फ्लो बन रहा है, ये वन साइड नहीं है, ये बोथ साइड है। क्यूरी जाता है, डेटा आता है। देखो ये रिफ्रेश का बंद हो गया यहाँ पे। अगेन आई गो टू द इसकी सेटिंग में जाके चेक करते हैं एक बार, रिफ्रेश हिस्ट्री सेटिंग, refresh history, you see this is your previous one failed, this is your current one, on demand refresh is completed, right? So you do any changes your in data source, आप उस फोल्डर के अंदर अगर कोई नई फाइल डालते हो या कोई चेंजेस करते हो डेटा में, एंड वंस यू हिट रिफ्रेश ओवर हियर इन पावर BI सर्विसेज, वो ऑटोमेटिकली डेटा को अपलोड अपडेटेड फॉर्मेट में दिखाएगा। दिस इज हाउ यू set a refresh when between your on-premises data source and cloud, Power BI services in cloud.
आप इसको शेड्यूल करते हो, जैसे आपने अभी 10 बजे का शेड्यूल किया, वो 10 बजे ऑटोमेटिकली डेली रिफ्रेश अपना होता जाए। आपको वापस से उसको मैन्युअली हर टाइम रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिफ्रेश टाइमिंग जो होते हैं ये मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे सेट किए जाते हैं, जहाँ पे सर्वर पे कम लोड होता है। जब सर्वर जब अप होता है, जैसे कि 9 to 10, मेरे 9 बजे का टाइमिंग है जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस टाइमिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे मॉर्निंग का उनका 9 बजे का टाइमिंग है, 9 से 7। तो 9 से 7 जब कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो अल्टीमेटली वो सर्वर को हिट करते रहते हैं। सर्वर पे उस टाइम पे लोड होता है ज़्यादा। तो उस पीक टाइम पे आप सर्वर का जो आपके डेटा का रिफ्रेश है वो रखते नहीं है। आप कब रखते हो? सुबह 2 या 3 4 बजे के आसपास उसको ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर देते हो। उस टाइम पे सर्वर पे कोई लोड नहीं रहता, सर्वर को बस एक ही काम रहता है, डेटा को पास करना है, रिफ्रेश करना है। तो वो रिफ्रेश की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, राइट। फेल्योर के चांसेस कम होते हैं। चांसेस ऑफ फेल्योर ऑफ रिफ्रेश इन पीक आवर्स इज मोर बिकॉज सर्वर्स बिजी होता है, सर्वर पे ज़्यादा लोड होता है उस टाइम। तो ये डिसाइड होता है, आप क्लाइंट के साथ, आपके मैनेजर के साथ डिस्कस करके ये डिसाइड किया जाता है कि जो रिपोर्ट्स आपने बनाए हैं उनका जो डेटा सेट है ये सर्वर को कब हिट करेगा, कब ये रिफ्रेश होगा। उस टाइम पे आप क्या करते हो, उसका टाइमिंग सेट करते हो। अगेन ये डेली रिफ्रेश करना है आपको, मंथली रिफ्रेश करना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट्स, उनका डेटा कैसे आता है। उनको डेली अपडेटेड डेटा चाहिए तो आप डेली उसको सेट करते हो, राइट। माइट बी सम क्लाइंट वांटेड कि मुझे सुबह के टाइम पे आप अपडेटेड डेटा दिखाओ, एंड देन आप शेड्यूल शाम के टाइम पे भी आप एक शेड्यूल रिफ्रेश करो 8 9 10 बजे का, एंड मुझे इवनिंग पे भी डेटा अपडेटेड करके दो। सो आप अकॉर्डिंगली आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो कि सुबह एक बार डेटा सेट रिफ्रेश होगा, इवनिंग को एक बार रिफ्रेश होगा। दिस इज हाउ दिस डेटा गेटवे वर्क्स। अंडरस्टूड? समझ में आया? किसी का कुछ डाउट है डेटा गेटवेज में? सेम पण MySQL पण कनेक्ट करता का? लाइक MySQL का यूजर नेम वगैरह यूज करता. यस। जर समजा मल्टिपल रिपोर्ट्स असले, डाटा वेगळा डाटा समजा डाटाबेस MySQLच आहे. हाँ। डेटा वेगळा आहे, डेटा वेगळा आहे. तर परत हम्म। ऑन प्रेमाइस गेटवे इन्स्टॉल करायची गरज नाही. नहीं, डेटा गेटवे एक ही बार इंस्टॉल होता है। आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को सेम गेटवे यूज़ करते हैं ना। जैसे अभी इस एग्जांपल में लेट्स से मेरे पास 2 रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट्स का डेटा अलग अलग है लेकिन डेटा सोर्स एक ही है। माइट भी एक रिपोर्ट में आपने 10 टेबल यूज़ किए हुए हैं और दूसरे रिपोर्ट में आपने 5 टेबल यूज़ किए हुए हैं। और जब आप 2 रिपोर्ट्स पब्लिश करोगे तो उन दोनों के अलग अलग डेटा सेट पब्लिश होंगे। सो यू सेट द शेड्यूल रिफ्रेश फॉर बोथ डेटा सेट सेपरेटली, लेकिन आप उनका जो रिफ्रेश का टाइमिंग होगा, लेट्स से कि मेरा जो फर्स्ट डेटा सेट रिपोर्ट है वो लेट्स से मैंने 2 बजे का सेट किया तो वो डेटा सेट 2 बजे रिफ्रेश होना स्टार्ट होगा। सेकंड डेटा सेट का जो जो सेकंड रिपोर्ट का डेटा सेट है उसका रिफ्रेश में लेट से 2:30 को या 3 बजे सेट कर दूंगा, ताकि दोनों क्लैश ना हो, सर्वर पे एकदम से लोड ना आ जाए। पहले मैं एक को रिफ्रेश करूंगा, उसका होने के बाद दूसरे को रिफ्रेश करूंगा। ऐसे में मल्टीपल वे में सेटअप कर सकता हूँ। मल्टीपल रिफ्रेश रहेंगे तो मैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे करके सेटअप कर सकता हूँ मॉर्निंग के टाइम पे स्लॉट्स। एट ए टाइम अगर छोटे रिपोर्ट है तो आप एट ए टाइम भी दे सकते हो, वो क्यू में रहता है। ये पहले फर्स्ट वाला रिफ्रेश हो जाएगा, फिर वो जैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा सेकंड वाला स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे चलता है। बट इट डजेंट मीन कि आपको हर एक रिपोर्ट के लिए अलग से डेटा गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा, नो। डेटा गेटवे आप एक ही बार इंस्टॉल करते हो, वही डेटा गेटवे मल्टीपल डेटा सेट्स के लिए यूज़ करते हो। मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए मल्टीपल गेटवे इंस्टॉल नहीं होते, गेटवे एक ही रहता है, एक ही इंस्टॉल होता है, राइट। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन यू हैव, राइट? हो. यस। एनी अदर क्वेश्चंस? इन्क्रिमेंटल रिफ्रेश झालं का आपल्या? Incremental refresh we don't have. I'll tell you about it. Incremental refresh. So basically what incremental refresh is, uh, let's say मेरे पास बल्क डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है। सो जब मैं यहाँ से ये रिफ्रेश कर रहा हूँ डेटा को मैन्युअली, या मैं डेटा गेटवे से डेटा को मैन्युअली रिफ्रेश करता हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं पूरे डेटा को रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास 3 साल का डेटा है,
तो आई एम रिफ्रेशिंग 3 years डेटा, मैं 3 साल के डेटा को वापस से लेके आ रहा हूँ। अब ऐसे कंसिडर करो कि मेरे पास 10 साल का डेटा है, डेटा की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रोज। उस टाइम पे अगर मैंने इस वे से विदाउट इंक्रीमेंट रिफ्रेश किया, तो उस डेटा को रिफ्रेश होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज में जाना, डेटा सोर्स में जाना पड़ेगा, सारे डेटा को लेके आना पड़ेगा, सारे ईयर्स के डेटा को लोड करना पड़ेगा आपके सर्विसेज में, एंड देन अपडेट द रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। बट समटाइम्स क्या होता है कि मेरा जो पहले का डेटा है, पिछले जो प्रीवियस ईयर्स का या ओल्ड डेटा जो है, वो वैसे की वैसा रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। So instead of refreshing or getting all the data, why don't I just use or I just take only that data that changes? So मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कोई एक डेट पीरियड फिक्स कर सकता हूँ या टाइम रेंज फिक्स कर सकता हूँ कि लेट से आज से 6 महीने तक का डेटा जो है वही डेटा बस रिफ्रेश होगा, बाकी का डेटा बस वैसे की वैसा रहेगा। So during the incremental refresh, your first refresh is your full refresh। आप एक बार में सारा रिफ्रेश कर लेते हो एक बार, जब सारा डेटा आपके पास आ गया, देन यू सेटअप अ इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ऑन अ डेट कॉलम, जहाँ पे आप एक रेंज देते हो कि इस डेट से लेके 6 महीने पीछे। तो हर दिन टुडे जो है, जैसे आज है, सो आज की डेट से 6 महीने की पीछे की डेट जो रहेंगी, उतना ही डेटा वो क्या करेगा, सर्वर पे जाएगा, उस डेट रेंज का फिल्ट्रेशन डालेगा वहाँ पे, उतना ही डेटा उठाएगा, यहाँ पे लेके आएगा, रिफ्रेश करेगा, ऐड करेगा। प्रीवियस जो डेटा रहेगा 9 10 9 9.5 साल का, उस डेटा को वो वैसे की वैसा रखेगा, उसको हाथ नहीं लेगा। इसका बेनिफिट क्या है कि आपका रिफ्रेश जल्दी होगा। पहले जब उसको 10 साल के डेटा को लेके आना पड़ता था, अभी वो बस 6 महीने का डेटा को लेके आया। बट इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में फिर ये होता है कि अ, जब आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश मॉडल्स के ऊपर अप्लाई करते हो, तो आप उनको डाउनलोड नहीं कर पाते फिर उन मॉडल्स के बाद। जैसे मैं पावर बीआई सर्विसेज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे इफ आई एम इन द पावर बीआई सर्विसेज, यहाँ पे मैं इस डेटा सेट को अगर मैंने डाउनलोड किया है, आई एम हैविंग द ऑप्शंस टू डाउनलोड दिस फाइल। इसको मैं अगर डाउनलोड करता हूँ तो आई एम गेटिंग पीबीएक्स फाइल। जो मेरी रिपोर्ट की पीबीएक्स फाइल ये है ना, सेम पीबीएक्स फाइल मुझे वहाँ पे मिलेगी उस डेटा सेट से। इन शॉर्ट, मैं डेटा को डाउनलोड कर सकता हूँ, इस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू गेट दैट कैपेबिलिटी व्हेन आई एम अप्लाइंग इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ऑन दिस डेटा सेट। मैं उस डेटा सेट को डाउनलोड नहीं कर सकता। तो लेट्स से कि मेरा कुछ डेटा सेट में मुझे वापस से चेंजेस करने हैं, जैसे कोई कॉलम्स ऐड करने हैं या कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, मॉडलिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस करना है फॉर फर्दर यूज, देन इन दैट केस आई एम नॉट एबल टू डू दैट इन द इंक्रीमेंटल व्हेन आई एम अप्लाइंग दैट। सो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश एप्लीकेबल व्हेन इट इज़ वेरी बल्क डेटा, आप बहुत बड़े डेटा के साथ काम कर रहे हो, एंड देन फॉर द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू यू वांटेड to do incremental refresh. But for the small data sets, small data sources, you never go with the incremental refresh. You go with the import mode only. Import mode means you refresh the whole data itself. This is why the incremental refresh, because incremental refresh again एक separate topic है वो. You can go with this online, whatever the sources available with you. You definitely find any good content in that incremental refresh. But over here we don't cover incremental refresh, we just cover the simple refresh that we connect to the data source and refresh whole data. That's what the most of the time use. Incremental refresh, a rare case, out of 100% might be 20% of the incremental refresh, 80% are the whole refresh. So the concept behind the incremental refresh, that's why I'm telling you, this is how the incremental refresh goes on. Specifically it works, आप जब पावर क्यूरी में आप डेटा को लोड करते हो, उस टाइम पे यू क्रिएट द पैरामीटर डेट रेंज का जो आपका कॉलम होता है ना, उस कॉलम के ऊपर आप पुट करते हो फिल्ट्रेशंस की। मेरा जो डेट कॉलम है उसमें मैक्स डेट और मिन डेट, दो पैरामीटर डेट्स की आप क्रिएट करते हो, रेंज स्टार्ट एंड रेंज एंड डेट बेसिकली, और वो फिल्ट्रेशंस आप यूज़ करते हो इन शॉर्ट बेसिकली। तो
इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के ऊपर आपको प्लेंटी ऑफ यूट्यूब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोज मिल जाएंगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है उन्होंने कि कैसे इंक्रीमेंटल रिफ्रेश हम अप्लाई कर सकते हैं डेटा सेट के ऊपर। You go with this videos, try to apply on this data set. Before applying it, make a copy of it and then apply it. इसकी एक copy create कर लो, publish कर लो, and then try to apply this incremental refresh in your data set in Power Query and see how happening the things over here. डेफिनेटली इंक्रीमेंटल रिफ्रेश से आपका जो रिफ्रेश का टाइमिंग होगा ना वो एकदम से कम हो जाएगा। अभी आप 3 साल का डेटा रिफ्रेश कर रहे हो, आप जैसे मंथली आपने डाल दिया इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की, मुझे बस 1 मंथ पीछे का डेटा रिफ्रेश करना है, इन दैट केस इट विल बी रिफ्रेश वेरी फास्टली बिकॉज उसको सारा डेटा रिफ्रेश नहीं करना है, ओनली पर्टिकुलर डेटा रिफ्रेश करना है। गो फॉर द बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग, इट गेट इनटू द डेटा सोर्स पे जा रहा है और बस उसी डेट रेंज का वो फिल्ट्रेशंस कर रहा है डेटा सोर्स के ऊपर और उसी डेटा को लेके आ रहा है, बस उतना ही। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश मीन्स व्हाट दैट इज पर्टिकुलर डेटा डेट रेंज के हिसाब से वो डेटा को फिल्टर करेगा और उतना ही डेटा लेके आके आपके टेबल्स में ऐड कर देगा इफ देयर इज एनी एडिशन इन द डेटा। सो रिफ्रेश क्या होगा उस टाइम पे, रिफ्रेश टाइमिंग जो होगा वो एकदम से कम होगा। सो यू कैन ट्राई आउट दिस। इफ यू वांटेड अ वीडियो लिंक आल्सो आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप, राइट? आप उसको देख के कर सकते हो डेफिनेटली, नथिंग no doubt in that. Okay, any further questions on this? I think we will take Monday's lecture also, one lecture. So in that we might be discussing on the projects and all these things. I think this took too much time on this RLS and the data gateway. Those are the bigger topics. So pretty much we clear with all the things, we cover all the things whatever available in the Power BI services in the Power BI desktop that you needed in your day-to-day practice. Definitely there are addition in the Power BI services also, Power BI desktop also, continuously updation is there. My recommendation is you continuously keep in touch with the whatever updates coming in the market, because Power BI is updated on monthly basis. मंथली इसमें हर एक नए फीचर्स अपडेट्स आते रहते हैं। सेम वे विद जो अपडेट्स आते हैं वो कुछ अपडेट्स सर्विसेज के लिए भी होते हैं, कुछ पावर BI डेस्कटॉप के लिए भी होते हैं, कुछ नए चार्ट्स ऐड होते हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं। अभी रिसेंटली yesterday only I saw a Redacat's new video which is coming for the organizational app. जैसे हमारा पावर BI ऐप है वैसे एक नया अभी फैब्रिक में, दिस इज द फैब्रिक राइट, ये फैब्रिक व्यू है, वेयर द प्रीमियम कैपेसिटी जिन यूजर्स का है उनके यहाँ पे न्यू आइटम करके एक ऑप्शन आता है, न्यू वर्कस्पेस आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे फैब्रिक कैपेसिटी में हम ऑर्गेनाइजेशनल ऐप बना सकते हैं। जैसे पावर BI ऐप में वी हैव अ लिमिटेशन लाइक वी ओनली क्रिएट वन ऐप फॉर वन वर्क स्पेस, but in newly updated features in organizational app we can create a multiple apps for the one workspace. So we previously used Power BI app for the sharing the content with the users. So this still it is in a preview mode, organizational app still it is incoming, but this is how it is going. आपको updates के साथ भी रहना पड़ेगा थोड़ा, माइट भी इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू और कुछ अपडेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया आपको जो आपने नहीं देखा है वो ऑप्शंस, तो फिर वहाँ पे फिर आपका इंप्रेशन जाता है कि यू आर नॉट अपडेटिंग योर नॉलेज बेस whatever based upon the new updates coming in the Power BI. It is not expecting that वो आंसर आपको पता ही हो, बट अगर पता हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है इंटरव्यू के ऊपर कि यू आर अपडेटिंग योर नॉलेज एज पर टाइम। ठीक है, fine then we close today's call. We'll meet on Monday and we'll discuss on the projects. Okay, any other doubts anybody having? Deployment pipeline on Monday.
No, we don't cover deployment pipeline in this. You need to explore on this deployment pipeline. If you having any doubts on the deployment pipelines or the incremental refresh during your exploration, then definitely you can ask to me. But we are not going to cover on these things in this sessions. See, there are lots of options are there in the workspace in itself. So each and every options I'm not able to cover these things. If I'm covering this thing, then the sessions will be too much longer in that case. में हमारा टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें. You definitely explore on this deployment pipeline. So deployment pipeline is nothing but what? So in real life, in practice, कंपनी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं. जैसे प्रोडक्शन का एक इन्वायरमेंट है, मेरा टेस्टिंग का एक इन्वायरमेंट है और डेवलपमेंट का एक इन्वायरमेंट है. ऐसे अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं. सो यू क्रिएट वन रिपोर्ट. जैसे आपने एक रिपोर्ट बनाया जो आपको प्रोडक्शन में लेके जाना है. ठीक है. सो पहले आप वो रिपोर्ट को क्या करते हैं, पहले उसको डेवलपमेंट फेज में होता है, देन इट गोज टू द टेस्टिंग फेज, एंड वंस टेस्टिंग इज पास देन इट गोज टू द प्रोडक्शन. डायरेक्टली रिपोर्ट प्रोडक्शन को कनेक्ट नहीं होती, पहले वो टेस्टिंग के डेटा सेट को कनेक्ट होते हैं या डेवलपमेंट के डेटा सेट को कनेक्ट होते हैं. सो यू क्रिएट अ पाइपलाइन ओवर देयर. सो पाइपलाइन में क्या रहेगा, आपको लेट से आपने 3 वर्क स्पेस क्रिएट कर लिए. ठीक है. जब आप पाइपलाइन क्रिएट करते हो तो वो आपको पूछता है कि आपकी 3 वर्क स्पेस कौन से है, डेवलपमेंट वाला कौन सा है, यूएटी वाला कौन सा है एंड प्रोडक्शन वाला कौन सा है. आप 3 वर्क स्पेस क्रिएट करते हो एंड पाइपलाइन जब क्रिएट करते हो अकॉर्डिंगली यू जो पाइपलाइन होगा आपको ऐसे दिखेगा कि लेट से अभी आप डेवलपमेंट फेज में हो, वहाँ पे इतने रिपोर्ट है आपके पास. ठीक है. सो अगर मैं पाइपलाइन यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट से मैं अभी मेरा जो रिपोर्ट है वो मैंने डेवलपमेंट के वर्क स्पेस में रखे हुए. अभी वो रिपोर्ट मुझे टेस्टिंग के वर्क स्पेस में डालने, तो इधर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक रिपोर्ट ओपन करना पड़ेगा, उसको पब्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा एंड उसको कहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा, दूसरे वर्क स्पेस पे पॉइंट करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ डेव आई वांट दिस वर्क स्पेस इन अ टेस्ट, दिस रिपोर्ट इन अ टेस्ट वर्क स्पेस. सो मुझे उन रिपोर्ट्स को टेस्ट वर्क स्पेस में पब्लिश करना पड़ेगा. अगेन उनकी डेटा सेट सेटिंग में जाके उनके जो सोर्सेस है वो चेंज करने पड़ेंगे. जो मेरा पहला पॉइंट करता था वो रिपोर्ट डेव के सोर्स को, उसको पॉइंट करना पड़ेगा टेस्टिंग के सोर्स को. ये जो एक्टिविटीज़ है मैन्युअली करनी पड़ती है ना हर एक वर्क स्पेस के लिए, तो वो एक्टिविटी हम डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में रिड्यूस कर सकते हैं. हम पहले से ही स्पेसिफाई करते हैं कि अगर रिपोर्ट्स मेरा डेव में है तो वो कौन से डेटा सोर्स को कनेक्ट होगा, वो कौन से वर्क स्पेस में रहेगा. अगर वो टेस्टिंग में है तो कौन से डेटा सोर्स को कनेक्ट करेगा, उस वर्क स्पेस का नाम क्या रहेगा. सो व्हेन यू सी द डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, वहाँ पे बस आपको ऑप्शन देगा. अभी आपको रिपोर्ट्स टेस्टिंग में मूव करने, आप बस वन क्लिक करोगे वो सारे के सारे रिपोर्ट उठ के चले जाएंगे टेस्टिंग में. अगेन टेस्टिंग में अगर जब आपका हो जाएगा टेस्टिंग वगैरह, आप बस क्लिक करते हो मूव दिस रिपोर्ट टू प्रोडक्शन, वो सारे के सारे रिपोर्ट्स वहाँ से उठ के प्रोडक्शन में चले जाएंगे. So this is how this deployment pipeline works simply. जो है मैन्युअल एक्टिविटी आप करते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैन्युअल एक्टिविटी आप यू आर डूइंग विद द एटोमाइज वे. मैन्युअल एक्टिविटी को ऑटोमेटिक करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस दी गई है. ऑप्शंस कहाँ पे है इसका डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन का, गो टू द वर्कस्पेस, you see this deployment pipeline. When I see the deployment pipeline, you see this new pipeline, assign your workspace, develop and test your content, share with users. When I click on the new pipeline, pipeline का कुछ नाम रहेगा, let's say test, and say next. This is the development, right? ये आपका डेवलपमेंट, से क्रिएट, गॉट इट. ये पावर BI ने बाय डिफॉल्ट मुझे 3 करके दिए, डेवलपमेंट, टेस्ट, प्रोडक्शन. आप वर्क स्पेस को असाइन करो, उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क स्पेस बनाने पड़ेंगे. आप क्या करते हो फिर यहाँ पे उनको असाइन कर देते. दूसरी बात, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन इज अ प्रीमियम फीचर, आपके पास प्रीमियम लाइसेंसिंग होनी चाहिए. इसीलिए राहुल टेस्ट नाम का वर्क स्पेस जो प्रो कैपेसिटी प्रो लाइसेंस से बना हुआ है,
वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। ये जो हमने राहुल टेस्ट फैब्रिक एंड राहुल टेस्ट पीपीयू जो प्रीमियम कैपेसिटी के लाइसेंस से बने हुए वर्क स्पेस है, वही दिखते हैं यहाँ पे मुझे। सो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन इज अ प्रीमियम फीचर। इसीलिए ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों नहीं यूज़ करती? क्योंकि इनके लिए अलग से कॉस्ट लेना पड़ेगा, उनको लाइसेंसिंग वैसे परचेस करनी पड़ेगी। प्रो लाइसेंस के लिए मुझे $20 है, सो आई कैन टेल डेवलपर कि हाँ तुम मैन्युअली टास्क कंप्लीट करो, ये जो रिपोर्ट्स है वो मैन्युअली तुम पब्लिश करो टेस्टिंग में या प्रोडक्शन में। इसके लिए मैं अलग से कॉस्टिंग लेने ले रहा हूँ, तुम्हारा काम ऑटोमाइज करने के लिए मैं अलग से $30 का लाइसेंस नहीं परचेस करने वाला। ठीक है, सो ये बैकएंड का मतलब कंपनी का पर्सपेक्टिव वैसे मैं बोल रहा हूँ। अगेन ये अगर क्लाइंट पर्सपेक्टिव है, क्लाइंट को वैसी रिक्वायरमेंट है कि उनका लाइसेंसिंग वैसे प्रीमियम कैपेसिटी का है, देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस प्रीमियम फीचर्स। बट डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन इज अ प्रीमियम फीचर, उसके लिए आपको प्रीमियम लाइसेंसिंग होनी ज़रूरी है। इधर भी वैसे भी आप ट्रायल यूज़ कर रहे हो, सो और आप ये वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे वर्कस्पेस क्रिएट करो, असाइन करो एंड देन टेस्ट इट। ओके, आणि हे जे डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग याच्यासाठी वेगवेगळं असतं का? प्रोडक्शनचं वगैरे? यस, ये डेवलपमेंट टेस्ट एंड प्रोडक्शन जो यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट बना के दिए हैं, इन रियल केस ऐसे ही होता है। अभी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कोई कोई प्रोजेक्ट में आप डायरेक्टली टेस्ट वाला जो वर्कस्पेस होता है, एक टेस्टिंग वाला होता है डेटा सोर्स जिस पे आप काम करते हो, उसी पे टेस्टिंग करते हो। डायरेक्टली वंस टेस्टिंग इज डन, ऑल द वैल्यूज यू आर एक्सपेक्टिंग टू मैच, वो होने के बाद आप प्रोडक्शन में जाते हो। समटाइम्स में डेवलपमेंट वाला जो होता है, वहाँ पे एकदम रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा इन द सेंस कि डेटा में इतना क्वालिटी नहीं होता। और टेस्ट में क्या रहता है, जैसा डेटा उनका प्रोडक्शन में है कंपनी का, क्लाइंट का, वैसे ही डेटा टेस्ट में होता है, बस वो डमी डेटा होता है। सो उस केस में उनको ये फाइंड करने के लिए इजी हो जाता है टेस्ट में कि जो रिपोर्ट आपके रिजल्ट शो कर रहा है, वैल्यूज जो शो कर रहे हैं वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, राइट? क्योंकि जो डमी डेटा के ऊपर आपने काम किया होगा डेवलपमेंट फेज में, माइट बी द वैल्यूज आर नॉट करेक्ट और द डेटा इज इन दैट क्वालिटी, दैट्स व्हाई योर रिपोर्ट इज शोइंग सम अनरियलिस्टिक वैल्यूज। इसीलिए टेस्टिंग फेज में ऐसे डेटा को रखा जाता है जो एग्जैक्ट रिप्लिका होता है प्रोडक्शन डेटा का, बट प्रोडक्शन का डेटा नहीं होता। तो उस रिपोर्ट पे जब आप उस सोर्स को कनेक्ट करते हो तो आपकी रिपोर्ट फिर प्रॉपरली वैल्यूज वगैरह शो करना शुरू कर देते हैं। देन दे डू टेस्टिंग ऑन दैट रिपोर्ट। वो कुछ दिन के लिए वो रिपोर्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वैल्यूज को चेक करेंगे, और फिर वो कंफर्मेशन देते हैं यहाँ ऑल द रिपोर्ट्स शोइंग वैल्यूज करेक्टली। अगर कुछ सजेशन रहेंगे, लेट्स से किसी ग्राफ के अंदर या किसी पावर बीआई लॉजिक जो आपने बिल्ड किया है, मेजर बिल्ड किया है, वो कुछ रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है आपके रिपोर्ट्स में, देन वो आपको वैसे इंटीमेट करते हैं कि हाँ दिस पर्टिकुलर लॉजिक इज गोइंग रॉन्ग, ये यहाँ पे हमें वैल्यूज कुछ गलत मिल रही है। सो बेस्ड अपॉन दैट इनपुट यू अगेन गो टू योर पावर बीआई डेस्कटॉप, यू चेक योर लॉजिक, ट्राई टू फिक्स इट, अगेन पब्लिश दिस इनटू द दिस टेस्टिंग वन। सो ऐसे फिर वो काम चलेगा आपका। ठीक है, मग फक्त तो मग बोलो। फक्त जे जे रिपोर्ट बनवले, मग त्याचा फक्त डेटा सोर्स चेंज करणार ज्यावेळेस फायनल प्रोडक्शनला, की परत न्यू रिपोर्ट्स बनवणार वगैरे? नहीं नहीं, सिर्फ डेटा सोर्स चेंज हो, न्यू रिपोर्ट्स नहीं बनते। वो रिपोर्ट्स डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन फेज जो होता है, वहीं पे रिपोर्ट्स का लेआउट एक बार फिक्स हो गया कि हमें ये चार्ट देखने हैं, ये ऐसा लेआउट है, ये ऐसा थीम है, ये सारा एक बार डेवलप हो जाता है। वंस इट इज़ डन, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। चेंजेस कहाँ पे होता है, हाँ वैल्यूज़ करेक्ट नहीं आ रही है, करेक्ट नहीं शो कर रही है, वट एवर लॉजिक यू क्रिएटेड फॉर दैट ग्राफ, आपने जो मेजर्स बनाए होंगे बैकएंड में उस ग्राफ को पॉपुलेट करने के लिए, आप उस लॉजिक को चेक करते हो, नॉट चेंजिंग द ग्राफ्स और नॉट द लेआउट। आप रिपोर्ट्स को एक ही बार बनाते हो, एक बार बनाते हो मॉकअप्स के लिए, जो इनिशियल लेवल्स पे बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो आता है क्लाइंट के साइड से, जो मतलब हमारे साइड से जाता है कंपनी के साइड से, आप रिक्वायरमेंट पहले फाइनलाइज करते हो कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट बोलता है कि लेट्स से हाँ हमें 5 रिपोर्ट चाहिए, ऐसा ऐसा एनालिसिस करना है।
तो क्लाइंट्स कुछ इनपुट देता है आपको कि ये हमारे KPIs रहेंगे, ये हमारे मेजर्स रहेंगे, हम ये ऐसे एनालिसिस करने वाले। सो बेस अपॉन दैट इनपुट यू क्रिएट सम मॉकअप्स। मॉकअप्स में आप क्या ध्यान रखते हो कि ये कंपनी कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कलर पैलेट्स इनके कैसे रहेंगे। बेस अपॉन दैट यू क्रिएट सम मॉकअप्स। आप वो मॉकअप्स एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शीट उनको बेचते हो कि जो मॉकअप्स आपने बनाए हैं इट कंटेन दिस इंफॉर्मेशंस। फिर क्लाइंट के एंड से उन पे कंफर्मेशन आता है, वो साइन ऑफ होता है कि मॉकअप्स एक बार फाइनलाइज हो गए। देन आफ्टरवर्ड्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड, आपकी रिपोर्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है। देन आप रिपोर्ट एक्चुअल बनाते हो बेस्ड अपॉन द डेटा दे प्रोवाइडेड, क्योंकि मॉकअप के टाइम पे उन्होंने कुछ एक्सेल्स प्रोवाइड किए होंगे, आपको डमी डेटा दिया होगा। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे वो आप एक्चुअल सोर्स को कनेक्ट करके फिर डेवलप करते हो रिपोर्ट्स। वंस डेवलपमेंट इज डन, आप उनको टेस्ट करते हो एंड देन यू पॉइंट दोज रिपोर्ट टू द प्रोडक्शन। आप उस टाइम पे जब पॉइंट करना है प्रोडक्शन पे, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते या नया कुछ बनाते नहीं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन एक ही बार होता है, बनाते एक ही बार है। ओके एनीथिंग? No. No. Fine. Okay then, we'll stop this. Again, जैसे मैंने बोला कि regarding deployment pipelines, incremental refresh, those also important things. You just explore on it. उसको छोड़ मत देना। कभी कभी इंटरव्यू माइट बी आस्किंग अबाउट इट, व्हाट इज इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, व्हाट इज डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, पूछते हैं ऐसे। अगर एक्सप्लोर नहीं किया हुआ हमने तो हम नहीं बता पाते, बट ट्राई टू एक्सप्लोर ऑन इट। जितना मैंने बताया उतना भी बताया तो इट्स फाइन, बट अगेन उसने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चनिंग कर दिया कि हाँ इसको कैसे करते हैं, उसको कैसे करते हैं, तो फिर थोड़ा सा हम नहीं बता पाते। इसीलिए एक्सप्लोरेशन होना ज़रूरी है। ओके फाइन, आई विल जस्ट क्लोज दिस